Good morning, students. I am going to start a new topic, polynomials, today. This video is beneficial for both class 9th and 10th. Before we start polynomials, we must know few basic things like constant. What is constant? Variable. Algebraic expression. What is constant? Constant is a value which is fixed. It is a fixed value that cannot be changed. Cannot be changed. Like as example, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 2 -3 5 0 8 any of the real number. Any of the real number is known as constant. What is variable? Variable is a value that can be changed according to different situations in a specific problem. As an example, we can x, y, z. It can be represented as x, y, z. Now, what is algebraic expression? Algebraic expression is combination of constant and variable. Constant multiplied by variable to the power rational number. Means algebraic expression is product of constant and variable to the power rational number. As an example, we can say, suppose 5 is a constant, x is a variable, and power of x we can take 3. Similarly, we can write 2x to the power 2 minus 3x to the power 5, etc., etc. These are the algebraic expressions. You can note it by pausing down the video. So now you know what is constant, what is variable, and what is algebraic expression. Let's learn few properties of algebraic expression. Suppose if we add one algebraic expression to another algebraic expression, then what we will get? This will also be the same algebraic expression. जैसे suppose 2x to the power cube plus 3x to the power cube. If we add it, then we will get 2 plus 3 5, and the variables are same, so x cube. Similarly, अगर if कुछ और अगर हम ले लेते तो हम इसको ऐसे ही लिखते 2x cube plus 3x square. This is also a algebraic expression. Similarly, अगर एक algebraic expression से दूसरे algebraic expression को सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक algebraic expression ही मिलेगा. जैसे
अगर हम 2x³ में से 3x³ को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, -x³। ऐसे ही अगर हम 2x³ में से 3x² को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा 2x³ - 3x², जो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दो प्रॉपर्टीज हो गई, दो और प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करें तो भी हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। जैसे 2x³ मल्टीप्लाइड बाई 5x⁻², हमें क्या मिलेगा, 2 5 जा 10, x³ मल्टीप्लाइड x का पावर 3 प्लस 2, देन 10x⁵, जो कि क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। इसी तरह से अगर हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करें तो भी हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। जैसे अगर हम 10x³ को डिवाइड करें 2x⁻² से तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 10x³/2x², ये 2 से 10 कट गया 5 टाइम्स में, तो 5 और x⁻³ - 2, हमें क्या मिलेगा, 5x, जो कि क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका पॉलिनोमियल से क्या संबंध है। इसका बहुत बड़ा संबंध है पॉलिनोमियल से। पूरी पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे ही डिपेंड करती है। कैसे? अब आता है क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल is a algebraic expression in which power of variable is non-negative इंटीजर। ध्यान दीजिएगा, पहला तो कि पावर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। वेरिएबल मीन्स x, y, z, वॉट एवर यू आर टेकिंग। पावर मीन्स जैसे x का पावर होता है ना 2, वो पावर, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसको सोचें तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। सपोज करिए कि इफ A0, A1, A2, AN आर रियल नंबर्स या कांस्टेंट नंबर्स, then A0 x⁻n plus A1 x⁻n - 1 plus an - 1 x plus an. If any algebraic expression is written in this form, then this is a polynomial. ठीक है, where A0, A1, A2 up to AN are real numbers and it cannot be equal to 0. It cannot be equal to 0. Why? It cannot be equal to 0. If it will be 0, then this whole term will be removed. अगर ये 0 हो जाएगा तो सपोज अगर A0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और इसको हम x⁻n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म ही रिमूव हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये इसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। ये होता है पॉलिनोमियल। तो एज एग्जांपल देखें, अगर हम
तो आइए थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पॉलिनोमियल नॉट अ पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल नहीं है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखिए मैं कुछ पॉलिनोमियल्स यहां पे लिख रहा हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख रहा हूं। देखिए यहां मैंने कुछ ऊपर नंबर्स कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं, इसको छांटना है पॉलिनोमियल और नॉट अ पॉलिनोमियल। सबसे पहला देखिए 3x क्यूब। 3x क्यूब इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स पावर इज 3 and 3 is a positive integer. Similarly, minus 3/2 to the power x to the power 2 is a polynomial because its power is 2. But here minus 3x to the power 3/2 is not a polynomial because its power is rational number. Similarly, 5x to the power 7/2 is not a polynomial because its power is 7/2. Similarly, x to the power √2. √2 is irrational number. It is not a positive integer. Therefore, it is not a polynomial. Now we better know what is polynomial, what is not a polynomial. It is just like algebraic expression. If we add two polynomial 1 plus polynomial 2, then we will get another polynomial. Polynomial 1 minus polynomial 2 is also be another polynomial. अगर एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा? पॉलिनोमियल ही मिलेगा। पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड पॉलिनोमियल 2 is also a polynomial. But in the case of division, लेकिन डिवीजन के केस में ये थोड़ा अलग होगा। सपोज करिए कि एक पॉलिनोमियल से अगर हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं 3x टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 2x टू द पावर 4। देखिए हमें क्या मिलेगा? 3x टू द पावर क्यूब अपॉन 2x टू द पावर 4, 3/2 x टू द पावर 3 minus 4, that is 3/2 x to the power -1, which is not a polynomial. It is not a polynomial. लेकिन अगर ये इसकी जगह पे कुछ और होता, it is not a polynomial. लेकिन अगर ये होता 3x to the power 3 divided by 2x to the power 2, तब ये क्या होगा? 3x क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 x टू द पावर 3 minus 2 इज इक्वल टू 3/2 x. इट इज अ पॉलिनोमियल. इट इज अ पॉलिनोमियल. तो जब भी हम डिवाइड करेंगे तो ये ध्यान रखना होगा कि जो डिविडेंड पॉलिनोमियल है उसका पावर
अगर डिवीजर पॉलिनोमियल के पावर से बड़ा है तब तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉलिनोमियल होगा। डिविडेंड पॉलिनोमियल अगर डिवीजर पॉलिनोमियल के पावर से बड़ा है तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर डिविडेंड पॉलिनोमियल डिवीजर पॉलिनोमियल के पावर से कम है तो रिजल्ट क्या होगा? नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है। अब हम जानते हैं टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इफ वी राइट सम पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, ये पॉलिनोमियल है। तो आप देखेंगे कि ये चार पॉलिनोमियल्स को ऐड करने के बाद एक पॉलिनोमियल बना है। चार पॉलिनोमियल्स को ऐड करने के बाद एक पॉलिनोमियल बना है। तो इन सभी पॉलिनोमियल्स को अलग अलग हम क्या बोलेंगे? टर्म। क्या बोलेंगे? टर्म। ये क्या है? एक टर्म है। और अगर हम इंडिविजुअल टर्म की बात करें, एक टर्म की 3x क्यूब है जैसे, तो देखिए ये क्या है? ये एक वेरिएबल है और ये क्या है? एक कांस्टेंट है। तो हर टर्म में, प्रत्येक टर्म में जो कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसी को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। यही क्या है? आपका कोफिशिएंट है। ठीक है। वैसे ही देखिए 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में कोफिशिएंट क्या है? ये 2 ही क्या है? कोफिशिएंट है। वैसे ही माइनस 3x में देखिए -3 क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक है। तीनों टर्म में, पहले टर्म में कोफिशिएंट क्या है? 3, दूसरे टर्म में कोफिशिएंट क्या है? 2, तीसरे टर्म में कोफिशिएंट क्या है? -3। ठीक है। और चौथे टर्म में क्या है? 9। चौथे टर्म में वेरिएबल क्या है? x to the power 0। 9 into x to the power 0 and power of, if any variable is having power 0 then result will be 1. So 9 multiplied by 1 is equal to 9.